Welcome back on Learning Channel, and once again I welcome all the learners and those who want to acquire study online. And in this video I will help you those who want to enhance their speaking capability from ground level to the advanced one, and those who want to speak English and improve rapidly. Okay, then for those this video is must watch. Okay, so do not skip in between and watch this video from beginning till the end, and share with your friend more so that they can also get assistant video and material in order to grow in their personal life. Okay दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमारा टेंस, ये बहुत बेसिक टॉपिक है. ओके, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, बट बेसिक होने के साथ बहुत एसेंशियल है. ओके, कीप इन माइंड एंड गो विद मी. बेसिक बट एसेंशियल. एसेंशियल क्यों? दिस इज द बेस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. Okay, this is the base of speaking English, and your English lies here on the tense. Base, foundation. Okay, so basic but essential. Base of your English, a tense is the foundation of English language and English speaking. Clear? Let me take you to brief introduction about tense, and then we go further. Okay, tense. What is tense? हिंदी में हम क्या बोलते हैं? काल. क्या है? What is tense? Tense tells us about time. टेंस हमें क्रिया काल के बारे में बताता है. एंड टाइम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. आगे जाने से पहले एक बात बता देता हूं मैं आपको. टेंस जो तीन है, प्रेजेंट जो वर्तमान समय होता है, पास्ट जो बीत गया होता है, और फ्यूचर जो आने वाला होता है, ये तीन चीजें हमारी हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्राइज बनाने में, और किस प्रकार हम टेंस को जोड़कर अपनी इंग्लिश में उसकी यूटिलाइज करें, वर्तो करें. ओके, सो दीज थ्री टाइमिंग्स हेल्प अस together to make sentence and express our thoughts in the desired English language and skill that we want to enhance into. Okay, so tense is the base and foundation of English speaking. Tense tells us about time, समय के बारे में, and time is divided into three parts: present, past and future. Other than three, there is no timing we live or we ever lived. Okay, present, the time that goes on. Past, time past. Okay, and future yet to come. Keep this in your mind. Moreover, every time I would repeat this. If you want to enhance your speaking rapidly, dynamically, then you must have this part of grammar on your tips. Okay, tense सिंपल टॉपिक है, बट बहुत प्रभावशाली है आपको इंग्लिश में एक नए स्तर पर लेके जाने के लिए. ओके, प्रेजेंट, मैं चाय पीता हूं. I take tea. मैं चाय पीता हूं. Past, I took
tea. Future, I will take tea. So understand the difference. Present, I take tea, मैं चाय पीता हूँ. Past, मैंने चाय पी, I took tea, मैं चाय पीऊंगा. I will take tea. Okay, 3 timings, no other than these. If you want to grip English in your fist, grip this first. Okay, let us go further. जैसे कि ये जाना, टेंस हमें समय के बारे में बताता है. टेंस 3 है ना. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, नाउ ऑल टुगेदर 3 timings. Go with me and try to understand as we go. And if you do not have if you do have any doubt in between, then it is easy for you to ask and make comments so that I can help you. Present, past, future 3 टाइमिंग है, बट ये 4 भागों में आगे डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अदर देन ये जो 3 टेंसेस है, इसकी 4 किस्में है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखी थी, उसको लेके चलते हैं. सिंपल प्रेजेंट, I take tea. Okay. Past continuous, I am taking tea. Perfect, I have taken tea. Perfect continuous, I have been taking tea. ठीक है जी. पास्ट, I took tea. Past continuous, I was taking tea. Past perfect, I had taken tea. And past perfect continuous, I had been taking tea. And last, future simple, I will take tea. मैं चाय पीऊंगा. Continuous, I will be taking tea. Perfect, I will have taken tea. And perfect continuous, I will have been taking tea. Okay दोस्तों, friends, students, understand the rules in their actual form and with their rule. ओके, प्रेजेंट, पास, फ्यूचर 3 टाइमिंग है और आगे ये तीनों 4 भाग में डिवाइडेड है.
ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, कोई एग्जांपल लें, मैं लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, लेटर, ये आई राइट अ लेटर। पत्र लिखता हूँ, पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, पत्र लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर। सो डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री, टाइमिंग है ना, प्रेजेंट जो चल रहा है, बीत रहा है ना, पास्ट जो बीत गया, पत्र लिख दिया, मैंने पत्र लिखा, पत्र लिखूंगा, फ्यूचर। सो ये एक सिनेरियो है हमारे पास ऑल टुगेदर, जो रूल वाइज हम आगे इसको करेंगे और आप डीपली इसको समझना, ताकि आपकी इंग्लिश में और भी सुधार आए और आप ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक आगे बढ़ते जाएं। तो आगे हम देखेंगे इसमें कुछ और रूल वाइज, अगर टेंस रूल वाइज प्लस एक टेंस जो टाइमिंग है उसको पर्टिकुलरली लेके। दोस्तों अभी हमने क्या किया है, एक इंट्रोडक्शन एट ए ग्लैंस देखा है, टेंस की डेफिनेशन और इसके जो कैटेगरीज है, पार्ट्स हैं, उसको अभी हम पर्टिकुलरली करेंगे। अभी ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस को ही हम आगे रूल वाइज आगे लेके चलेंगे, समझेंगे विद रूल्स। क्यों मैंने बोला है ना आपको कि अगर आप इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो तो पहले टेंस को अपनी मुट्ठी में करना है। ओके, ग्रेप English first. Now, if you want to grip English in your hand, then you need to grip first tense. Okay. आपको इंग्लिश बोलने के लिए ये रूल को साथ लेके चलना है। अभी प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट को देखिए। इधर लिखा है मैंने रूल और इधर लिखी है एग्जाम्पल, ताकि आपको रूल के साथ एग्जाम्पल करी जाए। और एक और बात बताऊं, जो सिंपल सेंटेंस है ना, आगे और चार भागों में डिवाइडेड है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन बिटवीन ये बातों को भी बता दूंगा, अगर ये हम स्लोली लेके चले। चलो ऐसे करते हैं, आपको थोड़ा और भी हेल्पफुल हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म एस और ई एस या ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हाँ इसको मैं आपको और भी डीप में समझा सकता हूँ। रीटा खाना बनाती है। रीटा cooks food. ओके, अभी इसको हम कैटेगराइज मैं कर देता हूं। रीटा इज सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। ओके, प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, हमारे पास वर्ब की फॉर्म है। अभी हियर एस और ई एस, सेंस रीटा इज थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस का प्रयोग होता है। और रीटा कुक्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये ध्यान रखना, ई एस का प्रयोग होगा जब एक लेटर कुछ भी है वो ओ के साथ ख़त्म हो रहा है, तब उसके साथ ई एस हम यूज़ करेंगे, याद रखना, ठीक है। रीटा सब्जेक्ट और कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ गया, और ऑब्जेक्ट है फूड। समझिए, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट हमारे पास है रीटा, क्या करती है, खाना पकाती है। रीटा कुक्स फूड। तो ये एक सिंपल है प्रेजेंट का, और सिंपल का ये सिंपल है, तो सिंपल का एक पार्ट है नेगेटिव। ओके, सिंपल का एक पार्ट है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस और डज नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। सेंटेंस यही ले लेते हैं,
रीटा खाना नहीं पकाती है। सब्जेक्ट रीटा। अभी डू नॉट और डज नॉट है, दो है, तो डू नॉट हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ और डज नॉट विद सिंगुलर। ओके, एक शॉर्ट नोट दे देता हूं आपको। जो डू नॉट है ये फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, यू, दे। और जो डज नॉट है ये थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। और यदि कोई एनी नेम आ जाए, एनी नेम, तो उसके साथ हम डज नॉट यूज करेंगे। तो यहाँ पर रीटा एक तो नाम है, एनी नेम, प्लस थर्ड पर्सन है, ही, शी आ गया ना, रीटा फीमेल, फेमिनाइन जेंडर रीटा, तो इसके साथ तो डज नॉट यूज होगा ना। रीटा डज नॉट कुक फूड। अभी ध्यान देना, इसके साथ एस, इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये इधर ईएस थी ना, ये इधर आ गई। ठीक है, सो मैंने बोला था ना एस ईएस का प्रयोग कब होगा, जब एक लेटर के पीछे ओ का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे रीटा सेंस बन गई, रीटा डज नॉट कुक फूड। डू नॉट अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो उसके लिए डू का इस्तेमाल होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसके लिए डज का इस्तेमाल होगा। ये था, पहले था सिंपल का सिंपल, रीटा कुक्स फूड। सिंपल का नेगेटिव, रीटा डज नॉट कुक फूड। अभी सिंपल का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्या रीटा खाना पकाती है? रूल क्या होगा? सॉरी, डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड विद क्वेश्चन। अभी फिर से डू इस्तेमाल होगा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ, डज इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन के साथ। सो हमारे पास सेम एग्जांपल है, डज आएगा सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट कौन है? रीटा। डज रीटा कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है? यस का प्रयोग फिर से आ गया ना डू के साथ, और इधर एस हट गया। तो ये है इसका फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट का पार्ट। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एक बात को दर्शाता है जो ऑन गोइंग है। ओके, याद रखना, जो ऑन गोइंग है, चल रही है, उसको दर्शाता है कॉन्टिन्यूअस। तो इसका रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट इज MR प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेम सेंटेंस ले लेते हैं। रीटा खाना बना रही है। ओके, सब्जेक्ट रीटा। अभी यहाँ इज आएगा, इज थर्ड पर्सन के साथ, याद रखना थर्ड पर्सन कौन? ही, शी, इट, एंड ए सिंगुलर पर्सन। एम only with I and R with second person। सेकंड पर्सन कौन सा बच गया? यू, वी, दे। ठीक है, इसको याद रखना। सो रीटा थर्ड पर्सन है, एज है हमारा में से एक आ गया, एज V1 कुक, उसके साथ ING कुकिंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। रीटा इज कुकिंग फूड मीन्स ये ऑनगोइंग प्रोसेस को बताता है, प्रोसेस चल रहा है। कोई भी हम काम करें, आई एम ड्रेसिंग अप, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम राइटिंग पेपर, आई एम गोइंग
and traveling somewhere. So that is the ongoing thing. जो किसी काम को continuous होने के बारे में बताता है, उस रूल के साथ वे है present continuous, और इसकी पहचान है मैं काम कर रहा हूँ. ओके, ये इसकी पहचान है, हूँ, कर रहा हूँ, प्रेजेंट. ये और प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव है ये एन मीन्स नेगेटिव, तो उसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस V1 के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस सेम V1. ओके, रीटा इज कुकिंग फूड, रीटा खाना बना रही है, रीटा खाना नहीं बना रही है. रीटा इज नॉट कुकिंग फूड. ओके, इसी तरीके से इसका थर्ड इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन आ गया जाएगा ना. रूल क्या रहेगा, इज एम आर प्लस V1 के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट और एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, इज रीटा कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो अगर हम एक पार्ट कर रहे हैं ना, प्रेजेंट पहले सिंपल किया, सिंपल के आगे पार्ट है, प्रेजेंट किया, कॉन्टिन्यूस पहचान ये है, एग्जाम्पल पर हमारे पास ये है, बट आगे उसका भी पार्ट है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो ये हमें आगे यूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल करती हैं. इसी तरह हम आगे चलते हैं और इसका परफेक्ट करते हैं. ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट का नेक्स्ट है परफेक्ट, और जो परफेक्ट है ना, ये किसी बात को दर्शाता है जो काम हो चुका है, और इसके लिए हमारे पास यूज़ करने के लिए है हैज़ एंड हैव. ये इस बात को दर्शाता है कि काम हो चुका है, तो इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पर V3 है, V3 इस बात को शो करता है कि काम हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट. ओके, तो एग्जाम्पल हम सेम यूज़ कर रहे हैं. शुरुआत करी थी, रीटा खाना पकाती है, रीटा कुक्स फूड. दूसरा था कॉन्टिन्यूस, रीटा इज़ कुकिंग फूड. अभी परफेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट क्या है, रीटा खाना बना चुकी है, और इसके लिए भी हैज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन के साथ और हैव का इस्तेमाल फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ. याद रखना, रीटा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ तो हैज़ यूज़ करेंगे ना. रीटा हैज़ थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड, रीटा खाना बना चुकी है. ठीक है, रीटा हैज़ कुक्ड फूड, रीटा सब्जेक्ट, हैज़ हैव में से एक आएगा, हैज़ थर्ड पर्सन के लिए और हैव फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए, तो हैज़ इस्तेमाल कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड एंड ऑब्जेक्ट आ गया फूड. और अभी इसका एन फॉर नेगेटिव, रीटा खाना नहीं बना चुकी है, तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट और हैव नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट. अभी हैज़ थर्ड पर्सन के साथ है, हैव फर्स्ट पर्सन के साथ. अभी इसको याद रखना, सेम सेंटेंस है, रीटा हैज़ नॉट कुक्ड फूड. ओके, देखना नेगेटिव आ गया ना, हैज़ नॉट, हैव नॉट, तो सेम पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म कुक्ड एंड फूड. इसका थर्ड पार्ट इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंडिंग विद क्वेश्चन. सेम है, क्या रीटा खाना बना चुकी है, हैज़ यूज़ कर रहे हैं, हैज़ रीटा कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क. तो
शुरुआत में हमने करी थी कि प्रेजेंट के चार पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी हम प्रेजेंट के थर्ड पर है, तो आगे भी इनके छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें। परफेक्ट जो किसी काम को बताता है कि काम हो चुका है, संपूर्ण। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव। V3 परफेक्ट के लिए रीटा खाना बना चुकी है, रीटा हैज़ V3 कुक्ड फूड। नेगेटिव, रीटा हैज़ नॉट कुक्ड फूड। इंटेरोगेटिव, हैज़ रीटा कुक्ड फूड। चलिए प्रेजेंट का लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके दोस्तों, ये प्रेजेंट का लास्ट पार्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी हमने क्या देखा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों की कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट अभी हम करके गए हैं जहां हमने हैज़ हैव का इस्तेमाल किया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जहां हमने V1 के साथ ING का इस्तेमाल किया, और अभी हम दोनों में इसको इस्तेमाल करना है। और एक बात बताऊं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है ना, ये किसी समय से लेकर बताता है कि कौन से समय से काम हो रहा है। ओके, कौन से समय से काम हो रहा है, इसकी पर्टिकुलर टाइमिंग बताता है, तो उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ होता है। इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन हैज़ हैव प्लस V1 के साथ ING। लेकिन हैज़ हैव के साथ तो V3 आता है ना, तो कॉन्टिन्यूस में V1 के साथ ING आता है, तो V3 के साथ ING कैसे आएगा। अभी इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, हैज़ हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे, तो जो V3 का इस्तेमाल नहीं होगा, बिन के साथ V1 के साथ ING का इस्तेमाल होगा। ओके, तो देखिए इसकी रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके, सेंटेंस अपना सेम है। रीटा शुरुआत करी थी, रीटा खाना बनाती है, रीटा कुक्स फूड, रीटा खाना बना रही है, रीटा इज कुकिंग फूड, रीटा खाना बना चुकी है, रीटा हैज़ कुक्ड फूड। अभी लास्ट, रीटा सुबह से खाना बना रही है, रीटा सुबह से खाना बना रही है। रीटा थर्ड पर्सन हैज़ बीन, V1 प्लस ING, कुकिंग ऑब्जेक्ट फूड। रीटा हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस, सुबह से, मॉर्निंग। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है वो किसी समय को लेकर बताता है, तो उस पर हैज़ परफेक्ट V1 के साथ ING दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीन इस्तेमाल होता है, हेल्प करता है, और सिंस फॉर टाइमिंग के लिए। ठीक है, इसका नेगेटिव यही रहेगा, हैज़ नॉट, हैव नॉट, बाकी सारा सेम आएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ये इसका नेगेटिव है, रीटा हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेगेटिव है। और अभी इसका लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट इंटेरोगेटिव। ये सिंपल था ना, रीटा हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव, रीटा हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अभी इसका लास्ट पार्ट इंटेरोगेटिव, और इसके साथ हमारा जो सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। इंटेरोगेटिव रूल क्या रहेगा, हैज़ हैव आगे, सब्जेक्ट प्लस बीन
V1 के साथ ing ऑब्जेक्ट प्लस S for since and for। चलिए फिनिश करते हैं। Has Rita been cooking food since morning? सुबह से। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, सिंपल था। Rita has been cooking food, negative Rita has not been cooking food since morning, and interrogative has Rita been cooking food since morning। तो ये था प्रेजेंट। प्रेजेंट को 4 भागों में हमने देखा है। प्रेजेंट सिंपल, रीटा खाना बनाती है, रीटा कुक्स फूड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रीटा खाना बना रही है, रीटा इज कुकिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट, खाना बना चुकी है, रीटा हैज़ कुक्ड फूड। एंड फाइनली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रीटा सुबह से खाना बना रही है, रीटा हैज़ बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये था एक सिनेरियो जो आपको हेल्प करने के लिए टेंस को डीप जाकर रूल वाइज आपको बताने के लिए, ताकि आपकी इंग्लिश में हेल्प हो सके। दिस विल असिस्ट यू इन बोथ वे, इन योर लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज इन योर स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इसको ध्यान से टॉपिक को करें समझकर और इसकी नोट बनाएं, ताकि जो डेली प्रैक्टिस में लेके आने के बाद आने से पहले आप इसको अपने फिंगर टिप्स पे लाएं, ताकि आपकी जो इंग्लिश है टेंस के साथ और भी अच्छी बढ़िया हो सके। नेक्स्ट द रेस्ट 2 tenses past and future we will discuss in our next video. Till you work on this, and if you have any doubt, feel free comment in the inbox or ask me anytime. Till then, stay home, stay safe. Thank you.